परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारा संसार रचयिता मालिक कबीर देव जी, कबीर साहेब जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, ये अमर पिता परम पिता, ये अमर पिता परम पिता अमर परमात्मा। ଆଉ ଆମେ ଏଇ କାଳର ଜାଲରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଆଜୀବନ ଗୋଟେ ପେଟକୁ ପୁରାଇବାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ଆମର ଯିବା ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। परमात्मा କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ କୋଉଠି ଆସିକି ଫସିଗଲ, ତୁମେ କୋଉଠି ରହିଛ ବିଚାର କର, ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ଜୀବନ? କିନ୍ତୁ परमात्माଙ୍କୁ ଏହା ବି ଜଣାଅଛି ଏହା ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ। କାଳ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବିବଶ କରି ରଖିଛି। ସେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ତୁମକୁ ଏଠି ଫସେଇ ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଶିବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ଆମେ ସେଠାରୁ ଚାଲିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଆତ୍ମା ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ନିଜ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଏଠାରେ ନିଜ ଆହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବନ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ରଜଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା, ସତଗୁଣଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ତମଗୁଣଯୁକ୍ତ ଶିବଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତର ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ତରଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି ଯେ ଯାହା ଏଇ ତିନି ଲୋକରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ଯଦିଓ ଏଇ ଭଗବାନ ନିଜ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଲୋକରେ, ବିଷ୍ଣୁଜୀ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେହି ତରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ କୋଠା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଲଙ୍କାର ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ସାକାର ବସ୍ତୁ ଲଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଯିବାରୁ ରୋଷେଇରେ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛିଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସେ ଛିଙ୍କକୁ ରୋକିବା ଜୀବର ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ଭାବରେ ଏଇ ତିନି ଦେବତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏମିତି ତରଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି ଯେମିତି ଲଙ୍କାରୁ ବାହାରିବା ପରି। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ରଜଗୁଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେସର ଏହି କାଳ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇ ରଖିଛି। ପୁଣି ସାଂସାରିକ ସୁଖ, କାର କୋଠି ବଙ୍ଗଳା ବନେଇବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସତଗୁଣର ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରୁ ସତଗୁଣର ତରଙ୍ଗ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯାଏ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି। ଆଉ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଯେ ଆମ ଅକ୍ତିଆର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆମେ ସନ୍ତାନ କି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ପାରୁନାହୁଁ। ତାକୁ ସ୍ଥିତି କୁହନ୍ତି। ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ଇଏ ପଡ଼ିଥାଉ ଏଠି, ଏମିତି ରହିଥାଉ ଏଠି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଭଗବାନ ଶିବ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ଶଙ୍କରଜୀଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ଇଏ ଆମକୁ କ୍ରୋଧିତ କରାଏ। ଜଣା ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନିଏ। କେଜାଣି କେତେ ପ୍ରାଣୀ ମରିଯାଆନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଇଏ ବିବଶ କରି ରଖିଛି। ଏତେ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କାଳ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ସେଠି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୋଉ ପୂଜା ପାଇଁ
जदि भी पूजा पाई गला सेठी भी तार ध्यान लगे नहीं, माने सेठी भी डिस्टर्ब रही थाए। से काल द्वारा ये व्यवस्था सुनियोजित भाव में रखा जाइछि। जेमिति मनुष्य जीवन पाई प्राणी परमात्मा को न भजे, आउ भजवा चेष्टा कले भी भूल भजु थाउ, शास्त्र विधि न मानी मन इच्छा पूजा करू, जेमिति जेमिति ये मोह जाल रे पड़ी जीव। से दयालु परमात्मा आसंती, जहां को आमे छाड़ी आसीथिलु निज दूरदृष्टि अभाव। कारण से होचंती आमर, आउ आमे होचु तांकर। आपणार दुख आपणा सह करा जाए। आमे जेते एठारे दुख पाई थाउ, सेतिकी परमात्मा आम सहित दुखी जंदी दुख भी पांती। एही सबुर कारण हैला जे सत लोकरे एही काल भूल करि देइथिला। आउ आमे भी भूल कलु, कहीं ना आमे निज पिता को छाड़ी जेबे ये तप करुतिला ताहा परे आसक्त होई गले। आमे निजर परमात्मा को छाड़ी देई आमे पतिव्रता पद आड़ को ढली गले। आउ आमे ताकू चाहिबारे लगिले भगवान को छाड़ी देई, जे हमको सर्व सुख देउथिले, सब प्रकार सुविधा थिला, सेठारे दुख न थिला, कौनसी काम न थिला, निष्कर्म रे मुक्ति सेठारे प्राप्त हुए। काम न करी मिले सेठी आपण को, तो आमे सेठी करिथिबा भूल जार दंड आज आम एटी भोगुचे हंक संगरे आसीगले। यांक द्वारा गोटे भयंकर भूल हैला जे जेबे दुर्गा जुबा थिले, परमात्मा को जुबा बने ता पाखक पठेई देले। आउ आमे सबु आत्मा मान को दुर्गांकर शरीर रे प्रवेश करई देले सूक्ष्म रूप रे। आउ ताको कहिले झियो वाक्य द्वारा जेते जीव कहिबे बनई देबु, बनई पारिबु, मु तते पावर दउची, कबीर भगवान कहिथिले। एबे काल भगवान सेठारे तांको सह खराब व्यवहार करिथिले। से सत लोकरे बदमाशी चलेनी, ये बलात्कार करिबा पई भाबिथिला, जोथि पई ताको सेठारु बाहर करि दिया गला। जेबे ताको निष्कासित करुथिले, ये बहुत क्षमा प्रार्थना कला। जने सहज दास नामक परमात्मा को प्रथम जनपुत्र, जार सर्वप्रथमे 16 पुत्र जन्म होइथिले, ता भितरु जने थिले। से प्रार्थना कला, मते एठारे रहिबा पई दियो, प्रार्थना कर भगवान को। से प्रार्थना कला, सहज दास गला भगवान को दरबार को, कहीं ना परमात्मा सतलोकरे मध्य टॉप मोस्ट पैलेस ठारे विराजमान थिले। परमात्मा कहिथिले पठेई दियो, ये एठारे रहिबा योग्य नुह। तेबे सहज दास आसी कहिला जे मैं तो अर्ध करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ बड़बाकी। से सेठारु आसिला तो तापरे सेही कथार प्रतिशोध नउची सी एबे आम ठारु, आउ आमर परमात्मा को ठारु प्रतिशोध नउची जे तांको आत्मा माननको एते मो हैरान करिबी, एमाने पाने पांतु, आउ सेमाने दुखी रहिले। ये ते शैतान जहां को आमे भगवान मानुथिलु, ये ब्रह्म, एठारे ब्रह्म नाम रे प्रसिद्ध। जेपरि गीताजी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16-17 रे तीन पुरुष कहा जाइछि, तीन प्रभु, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परम ब्रह्म। संतों को बाणी रे गोटे परम ब्रह्म शब्द अछि। ये परम ब्रह्म को पाई नुहे, पर अर्थात सबुठारु पर, सबुठारु लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, अर्थात सुप्रीम गॉड। तो यही अक्षर पुरुष परम ब्रह्म आउ यही दुई लोक भितरे एवं तांकर सबु नाशवान, तांकर शरीर ये भी नाशवान, जीवात्मा ताहारी मरे नाही। 15 अध्याय 17 श्लोक रे कहा जाइछि जे उत्तम पुरुष तु अन्य उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कहीं अन्य समर्थ। से तीन लोक रे प्रवेश करी सबरी धारण पोषण करती, सी अविनाशी परमात्मा, तांको परमात्मा कहती। पुणी 15 अध्याय 18 श्लोक रे यह भी कहा जाइछि जे मो एथिपाई पुरुषोत्तम प्रसिद्ध ही गले, जे मो अंतर्गत जेते सब प्राणी तांको ठारु मु उत्तम श्रेष्ठ, तांको ठारु बड़शाली मु बहुत। जे 21 ब्रह्मांड रे अछि, ये मो ठारु कम शक्ति रे मु तांको ठारु अधिक शक्तिशाली।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକମତ ଅନୁସାରେ ଶୁଣା କଥାକୁ ନେଇ। ମୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ 17 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛି ସେ ଆଉ କେହି ଅଛି। ଏପରି ଏକ କାଳ ଏଠାରେ ଯିଏ ଅଛି, ଏଠି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲାଇଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗଡ୍କୁ, ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତିନିକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ପରମ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ। ତେବେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ବେଦ ହେଉଛି ମୋର ଭେଦ, मैं न वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ବେଦ ହେଉଛି ମୋର ଭେଦ, ବେଦ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ସୂଚନାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଏଠାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସତଲୋକରୁ ଗତି କରି ଆସନ୍ତି। ଏହି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି। ସତ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଶତସୁକୃତ ରହେ। ତ୍ରେତୟାରେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ କରୁଣାମୟ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଯିଏ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ଲୀଳା ସବୁ କରନ୍ତି। ଏପରି ବେଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତଳକୁ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେପରି ନିଜ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି, ସବୁ କାମ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକାମ କରି, ଏପରି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ସେଥି ସହିତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସନ୍ଥର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହି ପରମାତ୍ମା କଳି ଯୁଗରେ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ନାମରେ ଆସିଥିଲେ, କବୀର ନାମରେ। କବୀର ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କଥା ଶୁଣେଇଛି ମୁଁ। ଯେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ଆସିଥିଲେ, କବୀରଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ନିଜ ଲୀଳା ରଚିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେବେ ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହେଇ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ମୀକି ଦମ୍ପତି ଯିଏ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଗୋଟେ ବାଲ୍ମୀକି ପରିବାରରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ମୀକି ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ନାମକ ବହୁତ ଭଲ ଆତ୍ମାର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଜୀଙ୍କର ମାତା ପିତା ସେମାନେ ପରମାତ୍ମା କବୀରଜୀଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନଜୀ ବହୁତ ଭଲ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କ'ଣ କି, ଘର କା ଯୋଗୀ ଯୋଗଡ଼ା ବାହାର କା ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ। କାରଣ ସେହି କଲୋନୀରେ ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବା ସହଜ ନଥିଲା। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନା, ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେବେ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାର ମାତା ପିତା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇପାରିଲେନି। ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ସତଲୋକ ଯିବୁରେ ବାବା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଦେଇଦେଲେ ଏ ଲୋକରେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଡ଼ ଫସିଯିବ ତ ହେ ଦାଦା ଆଉ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବେନି। ଠିକ ଅଛି ବେଟା, ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହ, ତୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ନା ଇଚ୍ଛା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଏ ଜୀବନକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ଫସେଇ ଦିଏ। ସୁଦର୍ଶନଜୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏ ଦାସର। ଆପଣ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କହେ, ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଏଇ ଦାସର।
जे मोर माता पिता बहुत भल आत्मा थिले, बहुत भल थिले सेमाने। हे परमात्मा सेमाने आपणक ना नहीं नाहंती। हे दाता सेमाने कालर जालरे फसी गले। मोर गोटे छोटिया प्रार्थना आपणक जदि उचित मणुचंती स्वीकार करंतु प्रभु, तांको पारी करई दियंतु प्रभु, कौन सी जन्म रे तांको पारी करई देबे। एबे परमात्मा भाविले ये भी फसिब, एबे ये भी रहिबो अति कष्ट रे जनक बाहर करने को भाभी कालर जालरू ये भी फसीगला तार दुर्बलता जोगु। जने वयस्क व्यक्ति डाक्तर पाखक चलीगला, जाकर डाक्तर को कहला, डाक्तर साहेब मो अंटा बिंधुची। डाक्तर देखिले सी अस्थि कंकाल सार बुढ़ा को, कहले जे देखा बाबा ये तुम दुर्बलता वीकनेस, तुम शरीर सेपरी कहे मु ठिया हो मुंड बुले दौची। डाक्तर कहले कमजोरी पाई, मो पाद उपर पेंडा फुली जाई पेंडारे जंत्रणा होची पेंडारे। डाक्तर कहले ये कमजोरी पाई। एबे ई सब कथा पाई बुढ़ा रागी जाई कहला तू डाक्तर ना हो किछि गोटे कथा कहूछु कमजोरी पाई कमजोरी पाई कमजोरी पाई। एबे पुणी डाक्तर कहला बाबा ये मध्य कमजोरी। बुढ़ा को कहे कहीं ना कमजोर लोक बहुत रागंती, तेणु ये मध्य कमजोरी, कमजोरी कारण राग आसला आपण को। तबे परमात्मा जानी नेले जे हर मध्य कमजोरी कहूची सुदर्शन। बिल्कुल उपयुक्त ही गला। ए इच्छार मंजी पुणी रखीदेला काल। परमात्मा कहती इच्छा दासी जम की या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं या सतखसमी लाल। एबे जेपरी आमको एठारु जीवाको हेबो, आमे पुण्य करूचु, पुण्य अति आवश्यक। आउ ये पुण्य गोटे एमिति जहाज हब साथीर, कारण सबु सहयोग हुए मंत्रर मध्य हेइथाए। जे पर्यंत ई पुण्यर काम अछि एही पुण्य आपणको से जाय साहाय्य करिवो, किंतु सेठाकु जाई एही पुण्य आड़े देखिबे नाही आपण। कारण सेठाकु जिबा परे जोठी एही अकाउंट रहिछि सेठी ठिया ही थांती कालर दूत। आउ एपरि कहंती अरे तोर तो बहुत रोजगार अछि, ओ तमे तो भाई आपण जे अछंती ना एमिति भाबरे तो विष्णु लोकरे देवता ही पारिबे, आपण तो ब्रह्म लोकरे एपरि बनि पारिबे, आपण तो 10 जन्म तो इंद्र पद को पाई पारिबे। ये सब पुण्य कारणरू सेठारे आपण को ही पुण्य को मध्य रखिबे नाही। एही पुण्य हमर सेठारे शत्रु ही जिवो, एठारे नुए एठारे तो आपण को अनेक हेल्प करिवो। सेठाकु जाई एही पुण्य आड़ को भी चाहिए नहीं जे आमर दरकार नहीं। आ कहती इंद्र दारेष्टा ना भोगा इंद्राणी नो एते घुषणित तो हो जाए एठाकर लोकर सेठारे इंद्र हो गला पुणी गध हम आसवा पर ए कथा मन रखा हम। परमात्मा भाविले जे बालक मध्य रहीगला एठारे, कारण परमात्मा आउ कालर गोटे वार्तालाप होइथिला। तबे ई काल परमात्मा निज पुत्र रूप में ठिया होउथिला सेठारे, हेले से बुझी पारिला नहीं भगवान ना साधारण दास ये किंबा जगजीत केबे परमात्मा कौनसी रूप में आसी जाती केबे कहार बेशरे। सेतबेले से कहिथिला जे 3 जुगरे जीव कम नहीं कि जीव प्रभु, 3 जुग सत्य जुग तृतीय जुग द्वापर को कम जीव नहीं जीव, और चौथा युग जब कलियुग आवे तब तो सरल जीव बहु आवे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। 3 जुग को जीव कम नहीं जीव, आउ चतुर्थ जुगरे जेते पार जीव नहीं जीव। एभली प्रतिज्ञा परमात्मा को ठारू नहीं जाइथिला। भगवान कही देइथिले कि ठीक अछि। परमात्मा मध्य ज्ञानींकर ज्ञानी थिले, जानी थिले जे 3 जुगरे भक्ति करिवेनी, कारण सत्य त्रेतया द्वापर रे भल आत्मा थांती, मजबूत शरीर होइथाए, अतीतर पुण्य साथी रे रहिथाए, एवं कौनसी भी साधना सेमाने करुथिबे सेमानकु अतीतर पुण्य लाभ होइथाए। यह भाबुथांती सेमाने जे जो साधना मु करूची सेइथिरु ही मोर पुण्य हेउची लाभ मिलुची। तबे एथिपई परमात्मा एई चतुर्थ जुग बाछिथिले
जे चतुर्थ जुग पर्यंत ये खाली ହେଇଯିବେ बिल्कुल ଖୋଳ ହେଇଯିବେ पुण्य एମାନଙ୍କ साथिरे नथिब एମାନଙ୍କର दुर्गति हबो आउ डुप्लिकेट काळ द्वारा प्रोड्यूस ହେଇଥିବା साधना करुथिबे एमाने सेମାନଙ୍କ ठाରୁ याकर କିଛି लाभ हबो नहीं आ तापर पुणी मु जीवी नचत कौनसी दास को पठेई देबी निजर प्रतिनिधि आपणे पावर मालिकर काम करे मु तांको सुख देबी से चिन्ही दे पारिबे भगवान किए आउ छाड़ी देबे से नकली साधना गुड़ी को तबे एई दृष्टिकोण परमात्मा सेठारे भाबिथिले जे कष्टरे तो गोटा को प्रस्तुत करा जाइथिला आउ एबी ये गुड़ टिकी दे एई कथा कहूची मनरे आसीगला दोष तो आसीगला आउ एबे सेई सुदर्शन जिनको एई विश्वास थिला जे जदि परमेश्वर गोटे थर ही हाँ कहीदेवे ताले मो माता पिता पारी ही जिबे माता पिता तापर परमात्मा कहले ठीक अच्छे बेटा चिंता करना तो माता पिता को मु पारी करी देबी हेले बहुत भूल करिसेंती समाने किंतु मु तो पाखरे वचन बद्ध ही गली निजको कहीदेले भगवान नहले से कहीथांता परमात्मा भाविथिले बुड़ीबा एबे तेबे से एबे शांत ही गला पूरा हे भगवान बहुत बड़ कृपा कले हे परमात्मा बड़ राजा करिदेले मते एबे पठेई देले सतलोकरे सुदर्शन को एबे कौन हैला कि तार माता पिता आग जन्म को ब्राह्मण घरे जन्म हैला से मानकर से दी जनकर पति पत्नी पुणी जुग हैला परमात्मा सेठारे पहुंची गले तांकर कौनसी संतान नथिला आउ परमात्मा तांकु 3 वर्षर बालक रूप में मिलीगले सब जगह जे प्रचार करदेला कहार ए बालक मुकाबिला करेला केही स्वीकार कले नहीं अधिकारी सह कथा भी करेला केही जेतबेले न नेले से माने कहिले तमे रखिनियो एबे 3 वर्षर बालक ताको एमिति कहिले एबे माता पिता तो कहिबार थिला भगवान को आ बसिबा को कहिले बसी जाए केबे कहती आपण भक्ति करंतु परमात्मा को ना नियंतु मो होची परमात्मा मते भक्ति कर मु ना कहिबी मोर नाम नियंतु से मन हसवा को लगती पिलामी चपलामी देखी आमको एमती कहूँ नाम नहीं नियो मो भगवान ताको पागल बोली कहवाक लगे पागलाटा के जानी पिलाटा कौन कौन सब कही जाऊँगी जेबे परमात्मा बहुत चेष्टा कले गोटे 2टा वर्ष तांको संगरे रहिले से माने जेबे न मानिले तेबे अंतर्ध्यान हो गले तांको सामना रे एबे तांको एते घोर वैराग हो गला भगवान कर हे परमात्मा ये तो सत सतिका भगवान थिले आमे गोटे बालक बोली भाबिथिलु सी कर्मवती थिले तांकर सेही गोटे आघात तार गोटे मेडिटेशन हो गला से आघात रे तांकर मृत्यु हो गला से आघात आर जन्म रे पुनश्च ब्राह्मण ब्राह्मणी हो गले संतान सेठारे मध्य नथिला गौरीशंकर सरस्वती नाम थिला गौरीशंकर ब्राह्मणर सरस्वती तार पत्नींकर आउ यही 2 जन आत्मा थिले सुदर्शनंकर माता पिता एबे परमात्मा भाविले जदि ए ब्राह्मण रही जिबे तेबे मानिबे नहीं एबे कौन कले ना परमात्मा निजर स्नेहर आत्मा को उद्धार करिबा पाई जहाँ भी कारण बनैबा को हेबो सेथिरु ही समाधान मिलिबो एबे कौन हैला ना से शिवंकर पूजारी थिले भलो आत्मा थिले भगवान शिवं को कथा कहूथिले आउ जहाँ किछि दान दक्षिणा आसुथिला केवल भोजन पई रखि देउथिले आउ जहाँ बड़का ताको अन्न दान करि देउथिले दान धर्म रे लगेई देउथिले आहुरी मध्य तांकर बहुत किछि महिमा हला अन्य ब्राह्मण जे थिले ईर्ष्या करिबाकू लागिले काहेकि ना लोक जोठार प्रसन्न हेबे सेथिरे दान बहुत दियंती कथा सुनी आउ से जो छलना बेला थिले लोकन को भ्रमित करुथिले तांकर गरिमा कम होबाकू लागिला से माने संख्यार अनेक थिले एई कथा जणा पड़ी गला मुसलमान माननकू जे हिंदू धर्मर अधिक प्रचार एई गौरी शंकर करुछि सेमानको यह भी जଣା थिला जे अन्य ब्राह्मण ताको ईर्ष्या करुछंती ता सहित सहयोग देबे नाही जबरदस्ती मुसलमान करिदेले तांको जबरदस्ती मुसलमान करिदेले तांको निज पानी छिंची देले तांको घरे तार मुहरे ढाई देले जे एबे तू मुसलमान हो गलु एबे से ब्राह्मण रेडी बसते अन्य सब जी थिले से माने कहिले जे ये मुसलमान हो गला तार भाईचारा एबेठु बन ताको गंगारे स्नान करिबा मना ये मुसलमान हो गला से तो बाट खोजुले
ଆଉ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ଏଇ ଦିନକୁ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା, ଗୌରୀଶଙ୍କର ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ତା ପାଖରେ ଉପାୟ ନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୟକଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ। ଆଉ ତାର ନାଁ ରଖିଦେଲେ ନୂର ଅଲ୍ଲୀ, ଆଉ ତାର ପତ୍ନୀର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ନିୟାମତ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିରୁ ଓ ନିମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ମନା କରିଦେଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଗାଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦଉନଥିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ସେମାନେ। ସେଠାରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଗୌରୀଶଙ୍କର ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ନିରୁନିମା ବିଚାର କଲେ, ଯାହା ଆଗରୁ ଆମ ପେଟ ପୋଷି ହେଇଯାଉଥିଲା ପ୍ରବଚନ କରି, ପୁଣି ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ସହଜ କାମ ଅଛି ଯାହା ବିନା ପଇସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ? ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କପଡ଼ା ବୁଣିବା କାମ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେଥିରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, 4 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପୋତିବାକୁ ହୁଏ। 4ଟି ଖୁଣ୍ଟ ବାସ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଦୁହିଁଙ୍କ ପେଟରୁ ଯାହା ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ହପ୍ତାହେ 10 ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି କୁରୀତି ସବୁ ଭରି ରଖିଛେ ଯେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖୀ। ସନ୍ଥ ମତ ଅନୁସାରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି, ସନ୍ତାନ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଆମର ସଂସ୍କାର। ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ, ଆଉ ପିଆମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିଲେ। ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଭିଡ଼ ପାୱାରରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କବିର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସିଏ ଆମର ସଂସ୍କାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିପାରିବେନି। ନା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ କରିପାରିବେ। ଆମର ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହିତ ଦେବାନେବା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଫସି ରହିଛେ। ଏକ ଲେବା ଏକ ଦେବା ଦୁତମ, या कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ଯେବେ ସୁଖଦେବ ଋଷି ନିଜ ମା ଗର୍ଭରେ 12 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ଯେବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଆସୁ ଆସୁ ଉଠିକରି ଚାଲିଲେ, ନିଜ ଉତ୍ତରୀୟକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯେବେ ବ୍ୟାସଜୀ କହିଲେ, ଆରେ ବେଟା ମୁହଁ ତ ଦେଖା, ପିଠି ଆଡ଼କୁ କରି ଚାଲିଲେ। ଆରେ 12 ବର୍ଷ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁତ୍ର ମୁହଁରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲେ ବ୍ୟାସଜୀ। ଆଉ କହିଲେ, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଚେହେରା ତ ଦେଖେଇ ଦେ ମୋ ପୁଅ। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ବିପରୀତ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଇ କୁହନ୍ତି, ଋଷିଜୀ, କେଜାଣି କେତେ ଥର ତମେ ମୋର ବାପା ହେଇସାରିଲଣି, ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଥର ତମର ପୁଅ ହେଇସାରିଲିଣି। ଏହା ଖରାପ ବେମାରୀ ଭୋଗିବାକୁ ଦିଅ ମୋ ରୋଗ କହି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏମିତି କହି ଅତୀତ ସଂସ୍କାର ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ସେଥିରେ। ତ ସେଥିରେ ସେହି ସମୟରେ କହିଥିଲେ ସୁଖଦେବ କେ ଏକ ଲେବା ଏକ ଦେବା ଦୁତମ, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, या तेरे संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପୁରା ସତ ଭାବିବ ତାକୁ। 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ପିତା ପ୍ରଥମ ବିବାହ କଲା, ତାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପିତାର 2 ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ମାତାଙ୍କର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ପିତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ଭାଇର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଭାଇ ଯେବେ 10-11 ବର୍ଷର ଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, 10-20 ହଜାର 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ତେବେ 2 ଜଣ ଯାକ ପତି ପତ୍ନୀ ମିଶି ଭାବିଲେ। ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଆମେ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ମରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେମାର ଅଛି ସେ, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେବା କିମ୍ବା ବିଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇଦେବା। ଏକମତ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଖରାପ କାମରେ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ସମର୍ଥନ ହେଇଯାଏ, ଏକମତ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ, ସେ କହିଲା ଯେ ତମେ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦିଅ, ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ କୋଉ ଔଷଧ ଦେଇଦିଅ ବିଷର। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେ କହିଲା 500 ଟଙ୍କା ନେବି। ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ସେ ସମୟର 500 ଟଙ୍କା କହିବାର ଭାବ ହେଇ ଯେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା।
मृत्यु हबार 2-3 वर्ष पर गोटे 2 वर्ष पर तार गोटे पिया है, 3 वर्ष पर तार संतान नथिले, गोटे पुत्र जन्म है। आउ सबु संपत्ति ता भाईर संपत्ति तार हो गला। से छुआ को खूब स्नेह खुआई पियाइले, खूब माने दिन गण गण से 15-16 वर्षर हो गला। 15-16 वर्षर है तो तार विवाह करदेला। विवाह हो हो पिला बेमार हो गला। पिलाटा असुस्थ हो गला पूरा। आउ तार चिकित्सा रे ट्रीटमेंट रे सबु संपत्ति बिकिदेला। घरे थिबा समस्त पैसा लगेदेला। फेले से सुस्थ हैला नाही। दिने से बसीथिला तार बापा और पुओ खटिया उपरे अंतिम निश्वास गणुथिला। सेतबेले से पिला कहिला, भाई साहेब मोर कफन तैयारी करि दियो आउ काठर। सेतबेले से भाबिला जे मोरे पुओर मुंडटा पूरा खराब हो गलानी, जे मते चिन्हि पारुनी। से कहिला, बेटा मु तोर बापा। से कहवाक लगिला, मु जानिची तमे बापा नुहे, तमे होच मो भाई। तमर मने थिबो तमर गोटे छोट भाई थिला, हाँ, आउ ताकू तमे केमिति मारी देइथिला विष देकी। आउ से होची मु आउ तमर पुओ रूप रे जन्म नेली मु। एबे भाई साहब मो हिसाब बराबर हो गला। जेते संपत्ति मोर हड़प करथिले से सब नहीं गली, सब मोठारे खर्च हो गला मो परे। एबे काठरे तैयारी जो कफन र पैसा से सुख अछि, तमे तार जुगाड़ कर, मु चले। तापर से कहिला, भाई तू जहाँ सब कहलु से सब सत। सतरे मु तो सहित बहुत अन्याय करिछि। एकमात्र पुत्र थिला, आउ आगो को किछि हबार आशा नाही। मोर कुल नाश हो गला। जहाँ मु कली मते भोगिबा को मिलिला। भाई भगवान को न्याय मध्य एटा भल हैला, मते मिलिबा दरकार थिला दंड। किंतु ये जो तोर स्त्री अछि सी कौन अपराध करदेला बिचारी। एबे ये तो मरिबा परे ताको जीवंता जड़ेई दबु, सती प्रथा थिला भी सेतेबेले। हेले से को अपराध करिछि से पचारिला। से डाक्तर कोठी? भाई कहिला, से डाक्तर मध्य 2 वर्ष परे तो मृत्युर 2 वर्ष परे अचानक मरीगला। तापर से कहिला जे ये होची सेही डाक्तर जी मो स्त्री हेके आसीची। एबे से जलिबो तो जलिबो, नला कोन हबो पाप आत्मार। तबे एही कथा को पुण्यात्मा माने आमको निज हृदय रे विचार करबा को पड़िबो। जेमिति गीताजी अध्याय 7 रे श्लोक नंबर 23 रे गीताज्ञानदाता कहिछंती, से तत् ब्रह्म को जानी करी आउ सब आध्यात्म ज्ञान को जानी करी सब कर्म सह परिचित ही करी प्राणी केवल जरा और मरण रक्षार ही प्रयत्न करे। से कौन सी वस्तुर डिमांड रखेनी। जरा अर्थ बुद्धावस्था, मरण मृत्यु। तेबे पुण्यात्मा माने आगु सब कर्म सहित परिचित हबार अछि। गोटे समय जने गुरु शिष्य चलिकी जाउथंती। जने धीबर माछ धरुथिला, आ माछ को धरु थाए ताको आनी जाल रे भरी बाहरे रखुथिला। से छाटी पिटी ही मरुथिले। एबे शिष्य पचारिला, गुरुदेव एई अपराधी प्राणी को कौन दंड मिलिबो? गुरुदेव कहिले, बेटा चाल तते कहिबी, समय आसिले उत्तर देबी तते मु। 5-7 वर्ष परे 8 वर्ष परे गुरु और शिष्य दुई जाउथांती जंगल देई। जंगल रे सेठारे गोटे हाथी छुआ दौड़ा दौड़ी करू करू 2टी गछ भितर फसीगला। बहुत पाखापाखी थिला। सी बाहरिबा पई चेष्टा कला, हेले बाहरी पारिला नहीं। आदो बाहरिबा पई चेष्टा करिबारे तार सब चमड़ा उतरी गला। बाहरी तो आसिला बाहर को, किंतु केते नाचार ही गला, से पड़ी गला तळे। तार शरीर सारा पोको पड़ी गले। पोक से जोर रड़ी करू थाए, चित्कार करू थाए। एबे से शिष्य पचारिला, गुरुदेव ए प्राणी एपरी कौन अपराध करिछि? देखो केते पोक ता शरीर रे पड़िछि, चित्कार करूछि। तेबे गुरुदेव कहिले, बेटा जो धीवर माछ बोला देखिथिलु, प्रश्न पचारिथिलु मते, गोटे धीवर माछ मारुथिला पचारिथिलु ना, तू पचारिथिलु ना ताको कौन दंड मिलिबो? कहबाको लागिले, ये सेही अपराधी हाथी रजनी रे आज ये जेते माछ थिले से तांको कामुड़ी कामुड़ी ता मांस खाउछंती, ये पोक रूप नहीं। तेबे पुण्यात्मा माने परमात्मा कहती, उम्र का मेल नहीं देखा, धर्मराज के तिल का लेखा। आमे पुणी हमर सेही प्रसंग को आसीबा।
एबे नीरू आउ निम्मा निज कपड़ा बुणिबा कार्य करुथिले। तांकर संतान नथिला। आ परमात्मा जेतबेले सारा सृष्टि रचि पारंती कोन संतान देई परिबे नाही? से उचित मने नाही। एथिपाई से उचित मने कलेनी जे तांको संतान देले पुणी नुआ करी तांकर सेई काम आरंभ ही जीव चक्र। एबे तांकर अतीतर लेन देन समाप्त हिची। आउ कथा पाखी आसिलानी। परमात्मा जानिछंती डाक्टर जानकी कोन भूल करि पारे? डाक्तर भूल करिवे नाही कि एथिरे ऑपरेशन माने सब ठीक थिबा काम को पुणी बिगाड़ी देबे। परमात्मांकर उद्देश्य होची एठारो उद्धार करिबा और सब आत्मा होची तांकर। आमे तो निज सुख पाई पुओ न कांदू बड़ होई कि रोजगार करू आउ मते सुख दो अमुक करू ये। आ बड़ पुओ बेमार हो गला 6 मास पाई बहुत पैसा खर्च हो गला ता पाई। गोटे वर्ष रे सारा परिवार कहती भगवान ताको उठे नियो ता कष्ट देखी होनी बहुत दुख पाउची। आ परमात्मा जो विचार करती से बिल्कुल ठीक करती। तबे संसार विचार रे आध्यात्मिक मार्ग रे बहुत फरक रही। एथि कहती जगत आ भक्तों शत्रुता लगी रही थाए, विरोध हुए। विरोधर कारण यही जे संसार कथा निज स्तरीय आ भक्तर आध्यात्मिक मार्गर कथा अलग ही थाए। जेपरी अनेक यार प्रमाण अछि जे आध्यात्मिक मार्गरे कहती एठी दंडवत प्रणाम करती सेठारे एमिति करती लंबा ही सोई जाती। एबे ए प्रकार कथा को सांसारिक लोक पसंद करती नहीं, कारण तांकर ज्ञान नहीं। मोड़ को जीए ढले जीए करे आनंद लगे मोर पुण्य बनती से माने अहंकार दूरी जाए। यही शत्रु जी मोर जीवन शत्रु अहंकार ए प्रकार थाए। समाज तो चिंता करे जार संतान हो नहीं से तो निकम्मा कर्महीन ता मोह चाहिए घोर अमंगल ये कालर प्रेरणा लोकवेद। आउ भगवान मार्गरे से बहुत पुण्यकर्मी देख पुण्यकर्मी तो सी मध्य जे नाम नहीं सारी तांको संस्कार तांको पुत्र कन्या भीतर अच्छी भल कथा समस्ते से परमात्मा आत्मा समस्त को लगे दिए भगवान चरण रे। एवं से संस्कार जहाँ अच्छी हालुका अनुभव हेब परमात्मा निज स्तर निज पावर द्वारा ठीक करेंगे ताहले ताहा हमर सहजरे समाधान हो पारिबो। आउ ई जीवन रे कार्य सारी देबे आपणकर मध्य संतान अछि तार मध्य आउ जहाँकर संतान नाही ताहा तो बना ही सारिथिबा कार्य तांकर। देख ए कथा नुहे जे संतान भगवान देई पारंती किंतु तांको संतान देई नहंती एइथिबे देई नहंती जे पुणी ये 84 तेल घणा रे जोड़ी ही जिबे तांको पई स्वयं चली आसिले बालक रूप नहीं सेई तांकर भक्तर प्रतिज्ञा पाए। एबे द्वितीय थर परमात्मा जहा लीला से करुछंती सेई लीला को प्रायतः 60 वर्ष अधिक आयु हो जाइथिला। नीरू आ निमांकर संतान किछि नथिला तांकर। आउ से माने गंगारे स्नान करिबा बंद करि देइथिले। एबे से प्रतिदिन स्नान अवश्य करुथिले कारण ब्राह्मण कुल जन्म थिला जोथि संस्कार एपरि थिला। राधी पाधी खाद्य ग्रहण करुथिले तो सेठारे गोटे लेहेर तारा नामक पोखरी थिला। लेहर तार तारा ना थिला। लेहर तारा एथिपई कहुथिले जे गंगार जल वर्षा दिन रे गोटे लहरी द्वारा ऊपर को उठी बहुत बड़ पोखरीर रूप धारण करि नउथिला। जेपरि एही सामना रे आपण देखुछंती सेतरे स्नान करिबा पई प्रतिदिन जाउथिले। समाने प्रतिदिन जाउथिले ताहा तांकर झोपड़ी ठारू प्रायतः 4 किलोमीटर दूर रे थिला। सेठारे बहुत बड़ जंगल थिला, बहुत बड़ पोखरी भी थिला। जो दिन परमात्मा सतलोकरु चली करी आसिले आकाश मार्गरे तांकर सतलोकरु चली करी आसिले तृतीय मुक्ति धामरु। सही समय रे जने अष्टानंद नामक महर्षि रामानंद जींकर शिष्य एक ऋषि अष्टानंद जी साधना करुथिले। निज गुरुदेवंक द्वारा कहा जाइथिबा क्रिया अनुसारे से देखिले जे आकाशरु गोटे प्रकाशर गोड़ा आसिला। तांकर आखि जेबे सही न पारिला
आखि बंद ହେଇଗଲା। ତ ଅଷ୍ଟାନନ୍ଦ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବାଳକର ରୂପ ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକାଶକୁ ଆମର ଚର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ଆଖିକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରି ନେଉ, ବନ୍ଦ କରି ନେଉ, ତଥାପି ବି ହାଲୁକା ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆକାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏପରି ଯେବେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତ କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ରୂପୀ ବାଳକ ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କୁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଠି ସେଇ ପୋଖରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଆସି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବାର ପୂର୍ବର ସମୟ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଆସି ସେଠି ବିରାଜମାନ କଲେ। ଆଉ ଅଷ୍ଟାନନ୍ଦଜୀ ଭାବିଲେ ଇଏ କଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଳକ ରୂପ ସେଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ସେଠି। ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଶିଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏବେ ଅଷ୍ଟାନନ୍ଦଜୀ ସେଠାରୁ ଉଠିକରି ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ରାମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ମୁଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଲି ଆକାଶରୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ମାନନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା କଣ ମୋର ଭକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ନା ମୋର କିଛି ଭ୍ରମ, ମାନେ ମନର ଭ୍ରମ? ତାପରେ ରାମାନନ୍ଦଜୀ କହିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର, ଏହା ତୋର କୌଣସି ଭକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ଆଉ ନା ତୋର କିଛି ଭ୍ରମ। ଉପର ଲୋକରୁ ଯେବେ ଦେବତା ଆସନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥାଏ, ସେ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ମାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଠାକୁ କିଛି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ଏବେ ଯେପରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ନିଜ ଶିଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କହିଦେଇ ସେପଟେ ନିରୁ ଆଉ ନିମା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେଠିକି ଆସୁଥିଲେ। ନିମା ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ ନିଜ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଯଦିଓ ମୁସଲମାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆଦୌ ବୋଲି ପାରୁନଥିଲା। ଏମିତିକି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ ଏ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ଯିଏ ଥିଲେ, ହଜରତ ମହମ୍ମଦ, ଇଏ ଶିବଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ଗଣ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅତୀତ ସଂସ୍କାର ଭଲ ଥିଲା, ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ କାରଣରୁ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଭକ୍ତି ବିଧି ଚଳେଇଲେ। ଏବେ କଣ କହନ୍ତି କି वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देखा अपने घर में। ସେ ହିଁ ମହମ୍ମଦ, ସେ ହିଁ ମହାଦେବ। କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କର ସିଏ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆଦମ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମା। ଆଦମଜୀ ଯିଏ ବାବା ଆଦମ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦାସ ଗରିବ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଛାଡ଼, ନିଜ କଥା ଆମେ କହିବା। ନିଜ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆଗ ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ, ତମର ଯେବେ ଭକ୍ତି ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେଇ ଲୋକରେ ଯେବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଆଦମ ରୂପରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯାଇଥିଲା ଏଠାରୁ, ତାପରେ ସେ କଣ ହୁଅନ୍ତି କି ସେଠାରୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ତଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କମଜୋର ହେଇଯାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କରି ପୁଣି ସେ ପିତୃତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ପିତୃଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେଠାକୁ ଯାଇ। ହଜରତ ମହମ୍ମଦଜୀଙ୍କୁ ଯେବେ ଜିବ୍ରାଇଲ ନାମକ ଏକ ଦେବତା ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଫରିସ୍ତା, ତ ସେଠାରେ ଦେଖିଥିଲା କି ବାବା ଆଦମ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଖରେ ଦେଖେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତି ଇଏ ତ ହସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହଜରତ ମହମ୍ମଦଜୀଙ୍କର ପଚାରିବା ପରେ ଜିବ୍ରାଇଲ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ବାବା ଆଦମ, ଆଉ ଇଏ ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ନିକମ୍ମ ସନ୍ତାନ ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଯେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ବାବା ଆଦମ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ। ଏଠି କହିବାର ମାନେ ହେଲା ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କାର ମିଶାମିଶି ହେଇଅଛି। ଆମେ କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ହେଲେ 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 ଏଇ କାଳ ଆମକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଆମକୁ କହିବାର ଭାବ ଏହା ଯେ କି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଏବେ ନିମା କାନ୍ଦୁଥିଲା।
अंतर भितर कहूला, हे भगवान, हे शिव महाराज, निज दासी को गोटे पुत्र दिंतु, मोर भी समाज ना रहू, समाज भितर मत जीवार बाट मिलଯିव। आमको लोके देखी देखु यह कहते जे हतभागा गुड़ा आसीगले एठिकी, या मुह चाहवा कथा नुहे। एपरी कही बहुत जोरे कांदिबार लगिला। नीरू कहला, निमा जदि आम भाग्य थांता भगवान ताहले देई थांते, अल्लाह देई थांते आमको, किंतु आम भाग्य तो नाही। अब तो कांदनी सब बेले, तो आखि फुटी जीव। ए बुढ़ा बयस केही साह नहीं, आखिरे तते देखा भी बंद हो जीव, तो आहुरी दुख पाइबू, एते आउ कांदना। एपरी कथा हौ हौ से स्थान रे पहुंची गले जोटिकी प्रतिदिन स्नान करने को आसुथिले। जून मास थिला, ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा, सन 1398 संभवतः 1455। ये खरा दिन कथा, उत्तर प्रदेश काशी बनारस री घटना। एवं प्रथमे निमा स्नान कर सारा, से पोखरी स्नान सारी से बाहर को चली आसला और सेपटे सेपटे नीरू स्नान करने प्रवेश कला से घाट को। कादुआ स्थान थिला। निमा जो लुगा पिंधि स्नान करथिला ताको धोइबा पई लुगा चेंज कर सारी ताको नहीं धोइबा को पुणी गला भीतर को, से पोखरी कूल को। सेतबेल को फर्चा ही आसुथाए, सेतबेले सकाळ ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्तर कथा धीरे धीरे सेठारे सकाळर अल्प किरण रे अल्प रोशनी देखा जाउथाए। सकाळु सकाळु जेमिति माने किछि एमिति देखा जाइथाए। तेबे निमा कौन देखिला जे पद्म फूल उपर गोटे पाद हलुची। सी भाविला को साप ही थिबो, मो स्वामी को काले कामुड़ी दब। से भल भाव देखिला, ध्यान दे देखिला। कौन देखिला, गोटे बालक माने तार गोटे पाद एमिति हलुची, एमिति हलुची, पाद हलुची। से देखिला ये तो बालकटी, से पद्म फूल उपर अछि। निज पति को डाक पकाइला, जे से किछि दूर रे स्नान करुथिला। यारे टिके देख, देखिल यारे, से पद्म फूल उपर बालकटे, छुआटे, मो छुआ, ताको उठाओ नहले बुड़ी जीव। नीरू स्नान करुथा एमिति। से भाविला यार मुंड खराब हो गलानी, एबे ताको पुणी ए पानी भीतर भी छुआ देखा गलानी। कहे भगवान ताको सद्बुद्धि दियो। जेतबे से आउ थरे जोर दे कहे, देख देख सतरे टिके देख देख, बुड़ी जीव। तापरे से भाविला, भाई देखिनी टिके। जो आड़ को संकेत कर देखुला, ध्यान दे देखिला, सतरे पद्म फूल उपर बाड़कटी। से तुरंत उठी आनिला। से पद्म फूल सहित से बालकटा को उठाई आनी निज पत्नी को धरी देला। एबे सही निमा ताको नहीं कि परमात्मा को कूल को आसीगला। नीरू गाधेवा को लागेला, से स्नान करुथला। आउ निमा परमात्मा को, से तो परमात्मा आसीचंती। एबे पुण्यात्मा मने जो मालिकों का नाम नेले लोम मूल छिड़ा हो जाए आमर, जहां को खोजबारे जुग जुग बीती जाए। आउ से परमात्मा से भौणीर कोଳରେ गोटे बालक रूपरे एबे जो आनंद से माँ को अनुभूत हेउथिब, जार नाम रे आनंद मिले, जी एठी आख पाखरे से आमर हुए केते सुख लागिब। एबे ता सही माँ ही कहि परिबो, से ही वर्णना करि परिबो। ता पाखरे कहिबा को भाषा नथिबो, किंतु पुत्र मोह मालिकों का कृपा, एते सुंदर बालक ताको अनेक अनेक एबे ताको गैहा करूची, मुखरे चुंबन दउची, छाती रे लगेई रखुची। आ धन्यवाद दउची निज शंकर भगवान को। हे भगवान, आज मु हृदय रू डाकिथिली, आज हे भगवान मो कथा सुनिल। एबे एठारे कहिबा जे जगत का पेखला पेक्षा दड़ी का नाम ना लेखा। ए ब्रह्मा विष्णु महेशंकर एमिति नंबर तैयारी करंती। भगवान तो आसंते निज कहते कन्ना शिवजी दे देले। एबे आमे माने एपर्यंत ब्रह्मरे रहिगले। एबे किछि समय भितर स्नान सारी नीरू बाहरी आसिला। से विचार कला जे आगत आमको मुसलमान बनई देले। मुसलमान का सह आमर बेसी लिंक नाही, हिंदू आम सह भी कथा हुनांती। आउ आमे बालक को घर को नहीं जीवु तो गाँ वाला साई वाला कहिबे जे तमे कहार चोरी करी आनिच।
आमे कहबू जदि पद्म फूल ऊपर मिली आमको आमको कहे मिछ कौच पद्म फूल उपर बालक रही पारबनी आउ आमको मारपिट कर बालक को छड़े ने कई कहे यार पिता माता कांदुवे तुम चोरी कर आनीच कहार सत कह आम तुमको छाड़बूनी यहीपरि 100 कथा चिंता कर निज पत्नी को कहला है निमा ए बालक को ये रखिदे ए आमर ही मंगल किंतु निमा कहे देख के जानी कौन है बालक मो पर की जादू करदेला एबे मु या बिना बंची पारिबिनी मरी जीवे मु या छाड़ी दे पारिबिनी एबे नीरू देखिला अरे ये तो मानो नाही घर बाहर करे कि रहिबा बालक कौन आमर दरकार से निज जीवन रे प्रथम थर निज पत्नी उपर को हाथ उठेला चापुड़ा मारिबा पई नीरू कांदी कांदी कहला तू जिद्दी करूचु मु तोर सब कथा आज जाए मानि आसी कारण तोर संतान नाही तू केबे दुख अनुभव न कर तेणु तू जिद्दी करूचु आ बहुत हट भी करूचु मो कथा मानु ना हो एबे बालक को छाड़ कही ता हाथ बढ़ई देला से परमात्मा जे कोड़े थिले कहले नीरू सावधान है जा नीरू रहीगला डरीगला को भूत कि प्रेत कि परिस्ता बालक कहवाक लगिला आ कहला जे मत घर को नहीं चल तुम कहीं किसी करेनि मु तमरी पाई ही आसी एमिति बालक कहला जे कलिजा फाटी जा पड़ी से चुप हो गला बिल्कुल निश्वास बंद करी आगे आगे चलिला निज धोती उठे घर को आसीगले घर को आसवा पर समस्त जानीगले एते सुंदर बालकटी भगवान केबे देखिच ना शुणीच सारा गाँव शहर पुरुष स्त्री देखा धाड़ी लगे राजा भी चले आसिले जे राजा थे से दिल्ली देखा आसिले सी भी एते सुंदर बालक को बोली बाली गले जे ये किए कोठू आनिले एमती तो कहीदेला जे लेहर तार पखर आमको मिला पद्म फूल उपर ये परमात्मा लीला था अन्य मान मन कौन भावना आने देला नहीं।